Hello, am I audible now? Hello. Yes, sir. Okay, okay. Okay, we are going to discuss some numerical problem and expecting you have the copy pen as well as calculator na? Do you have this thing na? Yes, sir. Yes, Yeah, sir. yeah. Okay. Yes, sir. Okay. Last time we have discussed the pattern allowances. On the basis of these allowances, we will design the pattern, how the allowances will be given to the pattern. Okay. Last time we have discussed some allowances. Okay. So basically, there are many Yes, types sir. of allowances, linkage allowances, shrinkage allowances. You have to know, you have to remember something about this. Shrinkage allowances is measured in the volume percentage. Is it clear? It is measured in the volume percentage. Okay. एंड आपका ये है आप परसेंटेज ओवर वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंटेज में श्रिंकेज अलाउंस को मेजर करते हैं. इज इट क्लियर? ओके. नाउ सॉलिड श्रिंकेज जो होता है, सॉलिड श्रिंकेज इज मेजर्ड इन द mm x mm पर मीटर में. याद रखना. इज इट क्लियर? ओके. इन द लीनियर डायमेंशंस. इज इट क्लियर? तो क्वेश्चंस दिया रहेगा आपका. ये क्वेश्चंस लास्ट टाइम में आया था. है आपका कास्टिंग शोन इन द फिगर. आपका ये दिस इज द कास्टिंग. ओके. यू हैव टू मेक अ पैटर्न so that you can achieve these dimensions of the casting. Is it clear? And the material is here plain carbon steel using and wooden pattern is used. Okay. Wooden pattern is used to make this pattern this casting. Okay. So what is the shrinkage allowance there? Shrinkage allowance for steel is 20 mm per meter. Is it clear? So we have calculated individually by for the length as well as width and as well as height. Okay. Accordingly, and we will calculate the final dimensions of the pattern. Last time I have discussed na. Do you have any doubt regarding this? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, okay. We will move further for the next question. Okay, machining allowance is measured in the x mm per side. Okay. If there will be n faces, you have to give the n times the machining allowance. So, ठीक है. Each faces will get the machining allowances. Okay. तो हमें हर सरफेस पे, हर फेस पे हमें मशीन अलाउंस प्रोवाइड करना पड़ेगा. एंड इट इज मेजर्ड इन x mm पर साइड. Okay. Okay. Right. We will discuss some numerical problem here. We are going to discuss. Okay. There are some steps you have to follow during solving any problems. Okay. Any type of problem. This is not related to only the casting process. Okay. First, you have to learn and understand the questions. Is it clear? Okay. And draw the diagram for that question. You have to draw. You have tried to draw the diagram for that questions. If is it possible. ठीक है. ये नंबर लाने का, अच्छा नंबर लाने का तरीका है. ठीक है. उसके बाद क्या करोगे? स्टैंडर्डाइज ऑल यूनिट्स ऑफ गिवन डाटा. यदि हमारे पास डाटा जो गिवन है उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट में हमको क्या करना है या ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दो. इज इट क्लियर? स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर दो. जैसे mm पर मीटर दिया हुआ है लेकिन हमको दे दिया रहेगा mm पर mm. तो उसको क्या करेंगे हम? स्टैंडर्ड दिया mm पर मीटर दिया हुआ तो उसको स्टैंडर्ड में हमें कन्वर्ट करना है. आप कंफ्यूज कर जाओगे. और तो गेट का एग्जाम ऐसा होता है कि आप करके भी बनाओगे टेंशन आ जाएगा. इसलिए डायमेंशन को सिंपलाइज कर देंगे. ठीक है. ओके. द नेक्स्ट स्टेप टू बी फॉलोड राइट वर्किंग फार्मूला. ठीक है. आपका जो भी वर्किंग फार्मूला है उसको लिख देना है. नेक्स्ट स्टेप विल बी सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आपकी. सर आवाज फ्रेश नहीं आ रहा है. बहुत कट रहा है. हेलो. Am I audible right now? यस सर आवाज कट के आ रहा है. ओके. अभी आ रहा है? आ रहा थोड़ा थोड़ा. Yes, sir. ओके. ओके. ठीक है. पहले मैंने क्या कहा? थर्ड स्टेप में मैंने क्या कहा? वर्किंग फॉर्मूला आपको लिखना है. ठीक है. फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि आपका गिवन डाटा जो दिया हुआ उसको पुट करना है. ठीक है. और यू हैव टू सॉल्व फॉर द मिसिंग डाटा. ठीक है. आपको क्या करना है? मिसिंग डाटा को निकालना है नेक्स्ट स्टेप में. ठीक है. एंड फाइनल स्टेप में क्या होगा? फाइनल स्टेप में आपका राइट द फाइनल कंक्लूजन.
conclusion, that is required dimensions we have achieved. Is it clear? Is it clear? What is the procedure to solve any questions? ठीक है, तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो आपको नंबर वगैरह अच्छा मिलेगा। यदि इंजीनियरिंग सर्विस में आप इंजीनियरिंग सर्विस के लिए प्रिपरेशन करते हो तो वहां पर भी ये बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, ठीक है, तो फिगर ड्रॉ करना मत भूलना, यदि पॉसिबल हो तो फिगर बनाना। ठीक है, ओके। नाउ वी आर हैविंग ए क्वेश्चंस। This what is the questions here? Questions is heat is removed from a molten metal of 2 kg. Mass is given here. Okay, heat is removed from a molten metal of 2 kg at a constant rate of 10 kilowatt till it is completely solidified. Okay, the cooling is shown in the assuming uniform temperature throughout the volume of the metal during solidification. Okay, what will be the value of fusion of the metal? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? इसका स्क्रीनशॉट लो। आपका आवाज ही सुनाई देगा तब ना। हेलो सर, आपका क्लास में बहुत प्रॉब्लम होता है सर, पहले भी आवाज कटता था, आज भी कटता है। देखो तुम लोग का नेटवर्क ठीक है? यहाँ तो सर नेटवर्क हम लोग का कभी ठीक सर एमबीपीएस में स्पीड आ रही है, अब इससे ज्यादा क्या जाएगी? देखो यहाँ भी नेटवर्क तो ठीक दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेदर है, तो दूसरा ऐप में क्यों नहीं क्लास करवाते सर? प्रॉब्लम कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट टीम में होता है सर, और गूगल मीट है, ये सब में करवाते हैं सर। कौन सा ऐप में? माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है ना सर, टीम में और प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा फीचर्स गूगल मीट भी है सर, गूगल मीट भी बढ़िया है, उसमें भी उसमें आवाज भी नहीं टूल्स नहीं है कटता। बहुत सारा। वो मीटिंग के लिए ठीक है, पढ़ाने के लिए नहीं है वो। अच्छा ठीक है, चलो अभी आ सर रहा है। टीचमेंट टीचमेंट में सब ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ भी पढ़ाता है, नेटवर्क इशू थोड़ा है कॉलेज में, समझे? ठीक है, अभी आवाज आ रहा है क्लियर? हेलो सर ओके ओके, लुक एट द क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम ए मोल्टेन मेटल ऑफ 2 kg, मास इज गिवन, mass of the molten metal is equal to 2 kg. Okay, and heat release for any time is here given 10 kilowatt. ठीक है, heat constant rate से आ रहा है at the rate of 10 kilowatt. ठीक है, till it gets completely solidified. ठीक है, कूलिंग कर्व मेरा देख रहा है, कूलिंग कर्व पे ध्यान दो, कूलिंग कर्व क्या देख रहा है? यहाँ से देखो, ये कूलिंग कर्व है, दिस इज द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर आपका कितना दिया हुआ है? दिस इज द पोरिंग टेम्परेचर है, पोरिंग टेम्परेचर इज 1023। ठीक है, दिस इज पोरिंग टेम्परेचर है। यहाँ पे लिक्विड क्या करता है? श्रिंक करता है अप टू व्हाट? अप टू एट द टेम्परेचर ऑफ 873 केल्विन। ओके, what is the time taken during this? During this time taken is 10 seconds. Is it clear? ठीक है, after that the liquid state is reached. Okay, the metal gets at liquid state. Okay, and after releasing the heat, it will get solidified at the room at the melting point temperature. Okay, temperature remains constant during this process. Okay, that is why it is known as latent heat of fusion. Is it clear? तो आपको क्या निकालना, उसके बाद क्या होता है कि 873 डिग्री टू फिर 600 डिग्री आता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो देयर विल बी आल्सो सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ओके ओके, ठीक है, तो ये आपका दिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस 873 to 873, that is our क्या है? phase transition zone, phase changing zone. Is clear? So during this process you have to calculate the latent heat. Is it clear? Latent heat आपको निकालना है। How much total heat is released during this process? You have to calculate first. Is it clear? Hello? Hello? Yes sir. सर Okay, okay. See, mass is given here 2 kg. Okay, heat releasing rate. ठीक है, हीट रिलीजिंग रेट देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हीट रिलीजिंग रेट दिया हुआ, दैट इज हीट
पर यूनिट टाइम दिया हुआ, ठीक है, दैट इज आवर किलोवाट होता है। यदि हीट को मेजर करेंगे तो किलो जूल में होगा, ठीक है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें निकालना है, ठीक है। तो ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस एट टेम्परेचर 873 केल्विन, ठीक है, 873 इज कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे क्या फेज चेंज होता है फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। इज इट क्लियर? तो वी हैव हैड अ फार्मूला Q is equal to m into L, where m is the mass of the molten metal and L is the latent heat. Is it clear? Okay. तो यहाँ पे आपका टोटल हीट निकालना है आपका Q is equal to क्या हो जाएगा, यहाँ से Q रेट दिया हुआ है into total time taken. Is it clear? So 10 is a rate of heat release, okay, and time taken is there what? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस perpendicular draw करोगे, there will be total taken is how much? How much time taken will be there? 10 सेकंड। Hello, 10 seconds. Okay, so 10 into 10, that will equal to 100 is equal to right side 2 into L. Okay, okay. So you will get here by solving this, you will get here L is equal to 50 kilojoule per kg. This is the required data. This is the required data. ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। Moving towards next questions we have. Okay, look at the question, understand and try to solve the question. सर पिछला वाला क्वेश्चन लाइए तो स्क्रीन पर थोड़ा। हेलो, यस सर। इसको स्क्रीनशॉट ले लो यदि आप खुद से देखना चाहोगे तो, ठीक है, और खुद से बनाओ, ठीक है। सर ये सॉल्यूशन मतलब कुछ हद तक समझ में नहीं आया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालना है केजी पर किलोग्राम किलो जूल पर केजी में, तो सर इसका मास हीट और लेटेंट हीट फ्यूजन निकालना है। तो लेटेंट हीट तो समझ में 50 केजी जूल निकाला है इसने, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू m इंटू एल, ये फॉर्मूला है सर क्या? यस, आप हीट ट्रांसफर में पढ़ा था ना, Q इक्वल टू m इंटू एल। और यदि मान लो कि वहां पे सेंसेबल हीट का केस में क्या मैंने बताया था, मैं लास्ट क्लास में फार्मूला ही तो बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। ये थर्मोडायनामिक्स का फार्मूला है। During phase changing process, there will be a formula, okay, for calculating the latent heat. Okay, latent heat will be equal to m into L, where m is the mass of that जो भी आपका मेटल है या जो भी वाटर जो भी रहेगा आप लोग, और इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ जो भी फ्यूजन। इज इट क्लियर? m into L, that will be equal to Q. Is it clear? That is the formula. And that is formula you have studied in the thermodynamics. Is it clear? यदि आपका यहाँ रहेगा, यदि सपोज कि आपको ड्यूरिंग द लिक्विड कूलिंग का ड्यूरेशन में आपको यदि आएगा निकालने के लिए हीट, तो हाउ विल यू कैलकुलेट द हीट? हियर हीट विल बी कैलकुलेटेड Q is equal to Q during liquid process is equal to m into Cp into, मैंने क्या बताया था, पोरिंग टेम्परेचर, हेलो, पोरिंग टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Now moving towards the next questions. Look at the questions and try to solve. Here what is given here, a pattern is required for manufacturing a hollow cylinder casting in steel, ठीक है। स्टील का एक hollow cylinder casting करना है, ठीक है। Cylinder size after machining is OD is equal to cylinder size after machining is on आपका OD दिया हुआ, that is outer diameter दिया 150 mm and inner diameter is there given, inner diameter is 110
sorry, inner diameter is 100 mm. Okay, and now you have to, L is also given here 150 mm. Okay, and shrinkage allowance is given here 1 dividing by 50. Okay, is equal to 0.2 कर सकते हो 0.02 ना. Okay, and machining allowances on each face is 2 mm. What will be the length of the pattern? You have to calculate only length. How will you proceed for this question? Hello. Hello. Yes, sir. Okay. जस्ट एक मैंने फिगर बनाया है, ठीक है, इजी फिगर बनाया है सिलेंडर का, जो आपका क्या बोलते हैं इसको, टॉप व्यू लो या फ्रंट व्यू लो. ठीक है, ठीक है. तो सिलेंडर का क्या दिया हुआ मेरे पास, इनर डायमीटर दिया हुआ है. योर इनर डायमीटर इज हाउ मच? इनर डायमीटर 100 mm here. Outer diameter is 150. Is it clear? Is it clear? Okay. Length is 150. Is it clear? Okay. Now you have to calculate the dimensions of the. You have to calculate the dimension of the pattern. That is length of the pattern. Only you have to calculate the length of the pattern. Where आपका दिया हुआ है. Shrinkage allowances is what? Shrinkage allowances is equal to 1 by 50. That is equal to 0.02. Is it clear? Okay. And machining allowances is there. Machining allowances is equal to 2 Sir, only mm. 0.2 होगा. 0.2. 0.0. देखो चेक करो देखो. Okay, 2 mm दिया हुआ है. Machining allowances will be on each faces. Okay. Now we are going to calculate the dimensions of the pattern. Okay, length of the pattern. ठीक है. तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे लेंथ ऑफ कास्टिंग. तो कास्टिंग का लेंथ क्या होगा? लेंथ ऑफ कास्टिंग will be equal to how much it will be add for machining allowances. Machining allowances is added in two sides, two faces. Suppose कि ये आपका एक फेस है और एक फेस है, ठीक है. तो there will be a 2 mm here and 2 mm here. You have to add. The total casting size will be equal to 150 plus 2 plus 2 will be equal to how much? 154 mm. Is it clear? Is it clear? एक बार फिर से बताइए तो क्या बोला आप, ये शुरू से प्लीज, आवाज नहीं समझ में आता. ओके. यहाँ पे देखो आपका क्या दिया हुआ, डायमेंशंस दिया हुआ है. आपका श्रिंकेज अलाउंसेस दिया हुआ है 1 by 50, that is equal to 0.02. Is it clear? मशीनिंग अलाउंसेस दिया हुआ 2 mm each side. ठीक है, हर फेस पे 2 mm देते हैं. ठीक है. जब आप ये डिजाइन करोगे, you will go for design this पैटर्न. ठीक है. तो आपका लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस फेस में 2 mm दोगे, इस फेस में 2 mm दोगे. ठीक है. तो ये टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू 154. समझ में आया? टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू 154 ऑफ द कास्टिंग. ओके. नाउ वी आर गोइंग फॉर द श्रिंकेज. ठीक है, वी आर गोइंग फॉर द श्रिंकेज. तो अब क्या करते हैं कि
there will be a change in the length after getting solidification. Okay, so shrinkage allowances will be how much? 0.2 of the length. Okay, length of the casting. It will be equal to how much? There will be a shrinkage, obviously. 154 into how much? 150 into 0. Hello. Yes, sir. आवाज नहीं आ रहा सर. Okay, 154 into 0.02, that will be equal to how much? That will be equal to 3.08. Is it clear? Is it clear? सर MA का मतलब क्या बोला था आपने? मैन्युफैक्चरिंग अलाउंस, मोल्ड अलाउंस, Machining allowances. Machining allowance. Machining allowance. Okay. Okay. Now you have to calculate the final length of the pattern. Is it clear? The final length of the pattern will be equal to L of the pattern. It will be equal to L casting plus beta L. That will be equal to how much? 150. कितना हो जाएगा? 150. डेल एल का मतलब क्या बोला था सर आपने? आफ्टर मशीनिंग. या ठीक है. del L is the shrinkage. There is a shrinkage takes place. Okay, there is a shrinkage plus take place inside the mold. ठीक है. मोल्ड का क्या होगा? श्रिंकेज होगा. ठीक है. तो there is a shrinkage allowances which is given as 0.2. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. हेलो. ओके, तो कैसे प्रोसीड करेंगे ये समझ में आया? क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, डू यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? प्लस माइनस Hello. अलाउंस होता है, कास्टिंग साइज प्लस माइनस अलाउंस. ओके ओके ओके. सर यहाँ पे सिर्फ सर हम लोग प्लस अलाउंस लिए हैं. से लेक्चर नहीं सुने थे लास्ट क्लासेस में. मैंने क्या बताया था? कोई बताओ. प्लस कहाँ लेते हैं और माइनस कहाँ लेते हैं? एनीवन? हेलो, डाउट किसको है? Yes. प्रखर. अच्छा, किसी Yes, को no. प्रॉब्लम है कि प्लस कहाँ लेते हैं और माइनस कहाँ लेते हैं? यदि किसी को समझ में आता है तो बताओ, नहीं तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार हो गया. प्लस और माइनस कहाँ लेते हैं मैंने बताया था लास्ट क्लासेस में ना. In the last class, I have told many times that where you have to take the plus sign or where you have to take the minus sign. सर मशीनिंग प्रोसेस के लिए. हेलो. अरे Hello. एक आदमी बोलो ना, क्लियर नहीं आ रहा है आवाज तुम लोग का भी. हेलो, एनीवन? सर मशीनिंग प्रोसेस के लिए प्लस में लेते हैं. मशीनिंग के लिए तो लेते ही है. मशीनिंग अलाउंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, बट आपका एक रैपिंग अलाउंस पढ़ाए थे वो नेगेटिव होगा. ठीक है, यहाँ नेगेटिव होगा. कौन सा? रैपिंग अलाउंसेस. एज वेल एज आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेंगे? मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि देखो यहाँ पे कोई भी मटेरियल है जो सॉलिडिफिकेशन के बाद वो एक्सपेंड करता है. सॉलिडिफिकेशन के बाद वो एक्सपेंड करता है तो उसका क्या लेते हैं? अलाउंसेस विल बी टेकन एज नेगेटिव. इज इट क्लियर? लेकिन मैक्सिमम मटेरियल क्या करता है? मैक्सिमम मटेरियल गेट्स कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द मैक्सिमम मटेरियल, सो दैट वी आर टेकिंग द positive allowances. Here steel is there, steel is by solidification, steel gets shrinkage. Okay, it gets shrinkage. That is why here we are taking the positive allowances. Is it clear, Prakhar? Is it clear? ग्रे कास्ट आयरन के केस में मैंने क्या बताया था? ऊपर डिपेंड करता है कि वो Yes, प्लस yes. लेता है कि माइनस लेता है, एक्सपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है.
Okay, okay, yeah. You have to keep in mind that which type of material shows their expansion after solidification. Okay, you have to keep just एक दो मटेरियल होता है, दो तीन मटेरियल होता है जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ फिर से, ये देखो लास्ट टाइम मैं बताया था यहाँ पे, सब इस में जा रहा है। देखो यहाँ मैं बताया था ना, कास्टिंग प्लस माइनस अलाउंसेस, ओके, कास्टिंग साइज प्लस माइनस अलाउंसेस, और आपका देखो यहाँ पे देखो, ये दिस इज द बिस्मथ एक्सपेंशन एक्सप्रेशन, बिस्मथ सिलिकॉन एंड ग्रे कास्ट आयरन, दिस इज द मटेरियल्स व्हिच फॉर व्हिच वी हैव टू टेक द नेगेटिव अलाउंसेस। इज इट क्लियर? बाद बाकी जो रेस्ट है उसके लिए हम क्या लेंगे? पॉजिटिव अलाउंसेस लेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर द? Okay. Time is going to over. Okay, you have to join again at the same link. इरेज करने का ऑप्शन कहाँ रहता है? Okay, look at the next question. What is the question? I am erasing right now. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Look at the questions and understand and solve. जब तक आप नहीं बनाओगे, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं, ठीक है? इसलिए खुद से बनाना है, बन जाता है, लेकिन खुद बनाओ, प्रैक्टिस करके दूसरी बात तो सीखने लगेगा, ठीक है? बात समझ में आई ना? सर यहाँ तो ग्रे कास्ट आयरन एक्सपेंड करता है ना सर, यहाँ श्रिंकेज अलाउंसेस दिया हुआ। हाँ, ग्रे कास्ट आयरन एक्सपेंड करता है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो, am I audible now right now? यस सर। Okay. Okay, very good. इरेज क्यों नहीं हो रहा है? ये इरेज नहीं होता है क्या? सर इरेजर तो सेलेक्ट किया ही था, उसी से ना होगा। हाँ नहीं हो रहा यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए तब तक, ठीक है? लैपटॉप से कर रहे हैं ना? CTRL Z दबाइए सर। कंट्रोल जेड। यस सर। अंडू हो जाएगा सर, अंडू करके हो जाएगा। आकाश, डोंट राइट एनीथिंग प्लीज।
ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व। ग्रे कास्ट आयरन ब्लॉक ऑफ 200 into 100 into 10 mm आर टू बी कास्ट इन सैंड मोल्ड, इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपका डायमेंशन दिया हुआ है ग्रे कास्ट आयरन ब्लॉक का। ठीक है, श्रिंकेज अलाउंसेस इज गिवन हियर 1%। ओके, what will be the ratio of volume of pattern to that of casting? I think it is very easy questions and you can solve them by yourself. Am I right? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Try to solve, please. Try to solve by yourself. I think you are very intelligent people. You can do anything. You can solve. Okay. What is your answer? ये मीटिंग का टाइम बहुत कम बच रहा है अभी। ठीक है, ये करीब करीब 20-30 सेकंड बचा हुआ, 20 मिनट सेकंड बचा हुआ। तो आप थोड़ा सा क्या करोगे ना कि इसी को फिर से ज्वाइन करना। ठीक है, इसी लिंक पे फिर से ज्वाइन करना आप। Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Have you solved the question? And what is the Sir, answer solve right कर रहे now? हैं sir. Okay.